Good morning, beta. Good morning to everyone. Students, we have to continue with the simple equations, right? So yesterday we were doing few questions and 4 questions were left which were to be discussed. So I have written those 4 questions on the board. Okay, now see the first one. I think you have solved these questions yesterday, right? So now see the solution. First question, 2q plus 6 is equal to 0. Now we have to find the value of k. See beta, 6 is with positive sign on the left hand side. When it will come on the right hand side, it will become minus 6. 0 minus 6 is minus 6. So you will directly write down minus 6. No need to show that 0 minus 6 step. Okay, directly you can write that it is equal to minus 6. Now q is equal to minus 6 by 2. Answer is minus 3. Answer is minus 3. Right? Now see the next question number 2. Now this question number 2 is from exercise 4.3. Right? These are the different sums. 4.1 में 4.2 में जो क्वेश्चंस थे वो कंपैरेटिवली थोड़े बेटा इजी थे. ठीक है. 4.3 एक्सरसाइज में थोड़े से मुश्किल सम्स, मुश्किल इन द सेंस डिफरेंट सम्स हैं which can come in 3 marks, right? So look here, this sum, second one, 4m plus 3 is equal to 18. Now it means this 4 is getting multiplied with m also and with this 3 also. So you can open the, and since it is 4, this 4 is getting multiplied with this full bracket. तो दो तरीके हैं, या तो आप इस 4 को उधर ले जाकर डिवाइड कर दो. अब इस 4 को उधर ले जाके आप डिवाइड क्यों कर सकते हो? क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई. ठीक है. अगर ऐसे होता 4m plus 3 is equal to 18 सपोज, तो आप 4 को उधर ले जाके डिवाइड नहीं कर सकते थे क्योंकि ये 4m के साथ लिंक्ड है. सिर्फ 4 सिर्फ m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के साथ कुछ नहीं हो रहा, उसका कोई रिलेशन नहीं है 3 के साथ. तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ता? पहले 3 को उधर लेके जाते, फिर 4 को क्या करते? डिवाइड, जैसे हमने पहले किया है. बट इन दिस क्वेश्चन सिंस 4 is getting multiplied with this full bracket, so you can divide, you can take this 4 on the right hand side and divide it. एक ये वो तरीका है. दूसरा, you can open the bracket. Now I have told you this bracket, the numbers inside the bracket are the members of the family and the number outside is some guest. When some guest comes to our home, our relative, then that relative meets every member of the family. याद रखो ये तरीका कि ब्रैकेट में जो है वो फैमिली मेंबर्स हैं और बाहर है जो ब्रैकेट के बाहर वो क्या है? हमारे एक गेस्ट. जब वो घर के अंदर आएंगे वो तो सबको मिलेंगे. ठीक है. ये नहीं कि एक मेंबर को मिले दूसरे को नहीं, सबको मिलेंगे. इट मींस ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी. The most common mistake which the students do is that they multiply this 4 with m, but you people forget to multiply this 4 with 3. उसकी वजह से बेटा आपका सारा सम गलत हो जाता है. ठीक है. So 4 into m is 4m plus 4 into 3 is 12 is equal to 18. Then बेटे very simple, 12 उधर जाके माइनस होगा, m is equal to 6 by 2 4. The answer is 3 by 2. Okay, I hope it is clear. Now see the next question. Now again see this question. -2 ब्रैकेट x plus 3. अब ये जो -2 है इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई.
सबको ध्यान से समझना है बेटे, सुनना है, गलती नहीं करनी है। नहीं सुनोगे तो गलती हो सकती है कि आपने ये देखा -2 और उधर जाकर इस -2 को +2 कर दिया, तो 0 नंबर यू विल गेट। You have to see the relation of this -2 with this bracket. ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये -2 इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड। और इन द अदर वे वी कैन ओपन द ब्रैकेट। और अगर डिवाइड वाले मेथड से करना है वो देख लो, हमने -2 को उधर ले जाकर क्या कर दिया, डिवाइड। क्या बचा हमारे पास, x + 3, 2 4s are 8, माइनस ऊपर चला जाएगा, x + 3 इज इक्वल टू -4, x + 3 इज इक्वल टू -4। समझ आ रही है? अब देखिए x इज इक्वल टू -4, 3 उधर जाके माइनस होगा, x is equal to -7. Any doubt to anyone? So these are the important sums. मैम आपने आंसर क्या बताया? बेटा आपको बोर्ड नहीं दिख रहा था ना? मैम ब्लर हो जाता है बीच बीच में मैम। बेटा -7। ओके मैम। Is the board blur to others? So I think it is clear, beta. Now see next question. Two y plus 5/2 is equal to 37/2. अब ये 5/2 जो है that is without variable. तो क्या करेंगे, इस 5 कोई पहले एलसीएम नहीं लेना, चुप करके इस 5/2 को इधर ले जाकर क्या कर देना है, माइनस। 2y इज इक्वल टू 37/2 माइनस 5/2। अब हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर है तो फ्रैक्शन को उधर लेके जाना है। अगर अकेला 5 होता तो 5 को उधर लेके जाके माइनस करते। अब देखिए 2 इज द एलसीएम, so denominator same है, तो it will come as it is 2y is equal to 32/2, 37 minus 5 is 32, डिवाइड करेंगे 16, y is equal to 8. Did you get the same answer when you solved? Okay, Nishya, I want to talk to you. Raise your hand. I'm going to write few more questions, simple equations. You all will solve that. Hurry up, start doing.
चलिए, these are the 9 sums. Quickly do these. Solve yourself. Whatever method you are following, follow by your side, right? Then I will solve it, and then you see whether you are getting the same answer. If you will be getting the same answer, it is very good. Otherwise, you can see the solution and you can find out where you are doing the mistake. सारे बच्चे sums करेंगे. Nobody will sit free, beta. Now see students, the first sum on the board, 5t plus 28 is equal to 10. Here we need to find the value of t. 28 is without t, 28 उधर जाके माइनस होगा. कोई बच्चा 5t is equal to 28 minus 10 नहीं लिखेगा. जो राइट हैंड साइड पे है वो वहीं पे रहेगा. ये 10 अपनी जगह पे है, राइट हैंड साइड पे 10 वहीं रहेगा, 28 उधर जाके माइनस होगा. So the questions are easy, it's just that you have to do it carefully. 5t is equal to 28 minus 10. क्योंकि 10 पॉजिटिव का है, 28 नेगेटिव है, so it will be subtracted. 28 minus 10 is minus 18. t is equal to minus 18 over 5. चाहे आप इसको डेसिमल्स में कर दो, minus 3.6 जरूरत नहीं है. 18 over 5 की कटिंग नहीं होती, तो you can leave your answer here also. The value of t will be minus 18 over 5. Did you get this answer? Everyone, thumbs up. Show me thumbs up if everyone is getting the same answer. 8, 12 students, 13, 15, very good. 16, 17, shabash beta. Everyone should respond. Okay. Now beta, see the next question. A by 5 plus 3 is equal to 2. Now it is again very simple. You can see this 3 is without a, without variable. So this 3 is going to shift on the right hand side. It will be a by 5 is equal to 2 minus 3. A by 5 is equal to minus 1. सबने integers किया हुआ, every one of you know. If one number is positive, other number is negative, तो minus होगा. 3 में से 2 को minus किया, 1 with negative sign. Yes. 5 नीचे है, उधर जाके multiply होगा. A is equal to minus 5 is our answer. So how many of you got the same answer? Honestly, show me the thumbs up. Yes, Lakshit. मैम ये आपने मैम मल्टीप्लाई कैसे किया मैम 1 को 5 से? अगर ऐसे यहाँ पर 2 होता लक्षित, तो ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते आप? करते कि नहीं? क्योंकि 5 नीचे है ना, ऊपर जाकर क्या होता? मल्टीप्लाई. बात समझ में आ रही है? ओके. अब यहाँ पर 2 की बजाय हमारे पास क्या था? -1. तो 5 को हमने ऊपर ले जाकर -1 के साथ क्या कर दिया? मल्टीप्लाई. 5 1 जा 5, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दो. ओके. फाइन. ओके. ओके बेटा. Now see the next question number 3. 7m plus 19 by 2 is equal to 13. Again, what is, when we are solving the equation, what we are doing till now? We are combining the like terms together. मतलब जो टर्म बिना वेरिएबल के हैं उनको हम क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं. अगर यहाँ सिर्फ 19 होता तो क्या करते? 19 को उधर ले जाकर क्या करते? माइनस. अब हमारे पास क्या है? 19/2. तो 19/2 को उधर ले जाकर क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि ये इधर क्या हो रहा है? प्लस. बोर्ड पे देखो बेटा सारे बच्चे. 7m is equal to 13 minus 19/2.
एलसीएम इधर पहले लेने की जरूरत नहीं है, आप चुप करके 19/2 को उधर ले जाओ, फिर एलसीएम लो। 7m इज इक्वल टू 2 एलसीएम, यहाँ 13 के नीचे क्या है 1, 2 डिवाइडेड बाय 1, या 1 के टेबल में 2 किस पे आता है 2 पे, 2 इंटू 13 26 माइनस 2 के टेबल में 2 1 पे, 1 इंटू 19 19, 7m इज इक्वल टू 7/2। नाउ m इज इक्वल टू 7/2, ये 7 सॉरी ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये क्या होगा बेटे डिवाइड, ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, 7 के 7 साथ 7 कैंसिल, we will be left with m is equal to 1/2. Is the question clear? How many of you got the same answer? 3 4 5 7 9 11. You have to be honest, ठीक है, सच बोलना है, ऐसे नहीं कि रे थम्स अप कर दिया, उससे तो कोई फायदा नहीं होगा। यस आकृति, मैम ये वाला सम फिर से समझाना, मैं समझ नहीं लगा। ठीक है जी। यस भावेश, मैंने कहना वो आपका 26 कैसे आया मैम? भावेश बेटा एलसीएम, एलसीएम लो, दोबारा करवाती हूँ, देखो एलसीएम लेते नहीं है ना तुम लोग, प्रैक्टिस नहीं करते हो। 13 19/2 इधर जाके माइनस हो गया, ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास अगेन आई एम राइटिंग, एलसीएम नहीं लेते थे बच्चे, 2 और 1 का एलसीएम क्या है 2, 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2, और इन अदर वे वी कैन से 1 के टेबल में 2 किस नंबर पे आता है 1 2s are 2, 2 इंटू 13 इज 26, ऐसे आया हमारा 26। When we have LCM तो बेटा आप लोग 5th क्लास से लेते आ रहे हो, जब फ्रैक्शंस का चैप्टर करते थे, याद आया कुछ? अब 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है 1 पे, 1 9s are 9, ठीक है। सो फर्दर इधर से देखो 26 में से 19 माइनस हो गया 7, 7/2। अब ये 7 इधर राइट हैंड साइड में m के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब हम इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे ये क्या होगा डिवाइड, 7 के साथ 7 कैंसिल हो गया, m की वैल्यू आ गई 1/2। इज इट क्लियर नाउ? एनी डाउट टू एनीवन? कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ आया तो बेटा पूछो, अनलेस यू विल आस्क I will assume that it is clear to you. पूछोगे तभी समझ आएगा कि यहाँ आपको डाउट है। All right. See the next question now, everyone. (6z plus 10 is equal to -2). ये 10 को उधर ले जाएंगे, -2 अपनी जगह पे, 10 उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा माइनस, 6z इज इक्वल टू -12, z इज इक्वल टू -12/6, z इज इक्वल टू -2। ओके, एनी डाउट? तो कई सम्स तो बहुत सिंपल है, बस ध्यान से करने हैं कि अगर इधर माइनस हो रहा उधर जाके प्लस होगा, इधर प्लस हो रहा उधर जाके माइनस होगा, लाइक दैट। नाउ दिस सम, अभी हमने ऐसा सम किया है, या ये 2 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इस 2 को उधर ले जाके क्या कर देंगे डिवाइड, 6 4 उधर जाके माइनस होगा, 6 minus 4, the value of x is equal to 2. Very simple. I hope it is clear.
आगे देखिए बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 अगेन we have done right now the question number 5th. 6th is also the same. Any doubt to anyone? You can raise the hand. Yes, Kanav. मैम जैसे आपने 2 को मार के डिवाइड माइनस कर दिया मैम, अगर हम उसको अगर पहले मल्टीप्लाई कर दे, जैसे 2x + 8 कर दे तो कर दो बेटा, 2x plus 8 is equal to 12. 4 था, 2x is equal to 12 minus 8 is 4. x is equal to 4/2. x is equal to 2. दोनों तरीके सही हैं, जैसे मर्जी करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसी तरह से ये सम है, चाहे आप ब्रैकेट ओपन कर दो, चाहे आप 3 को उधर ले जाके डिवाइड कर दो। इफ यू आर कंफर्टेबल विद बाय ओपनिंग द ब्रैकेट देन लेट अस फॉलो दैट। 3 into n 3n minus 3 into 5 15। अगर ब्रैकेट ओपन करते हो तो बस इस चीज का ध्यान रखना कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक के साथ मल्टीप्लाई किया ना तो फिर देखना, इस क्वेश्चन के साथ साथ किसी और क्वेश्चन में इसमें तुम्हारे नंबर काट लेने हैं मैंने, because we are giving so much stress on one thing and still sometimes you people do that wrong and that is very disappointing. Is equal to -21. -21 राइट हैंड साइड पे है तो वो माइनस ही रहेगा, अपनी मर्जी से उसका माइनस उड़ा नहीं देना है। -21 + 15, 21 minus 15 is 6 but with negative sign. N is equal to -2. ओके, अगर हम डिवाइड करते, इधर देखो, n - 5 -21/3, ये क्या आता? -7। So you can follow any method. The answer should be correct. Now next sum, again very easy sum. 4 इधर ले जाके डिवाइड कर दो, 2 ये 4 को डिवाइड करेंगे जब, बोर्ड पे देखिए 2 - x = 2। अब आपने इस स्टेप पे ध्यान देना है बेटे। अब ये क्या है? -x है, तो x के साथ जो नेगेटिव है उसको आपने ऐसे ही नहीं उड़ा देना कि बच्चे x के साथ -x है उसको x ही लेते जाते हैं। इसके साथ जो माइनस है वो इसके साथ चलेगा, और यहाँ क्या है? प्लस। नाउ देयर आर 2 वेज। अगर आप इस -x को राइट हैंड साइड पे लेके जाते हो इट विल बिकम +x, और 2 ये वाला इधर जाके -0 आंसर आएगा। या एक और तरीका है, -x को अपनी जगह पे रखो, 2 ये 2 इधर जाके क्या होगा? -x = 0, तो x भी क्या आएगा? 0, नेगेटिव 0 के साथ जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इस लास्ट स्टेप में गलती मत करना। फाइन, नेक्स्ट देखिए, 4 is equal to 5 is getting multiplied with this both the numbers p - 2. So we will open the bracket, 5p - 10. 10 लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस होगा, is equal to 5p, 14/5 is equal to p। 5 इधर आके हो गया डिवाइड। दिस इज द आंसर। सबको क्लियर है? नाउ द लास्ट क्वेश्चन, 16 is equal to 4 plus, ये 4 प्लस है। अब जहां यहाँ पर जो बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक
बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं 4 + 3 7। कितनी बार बेटा जब भी टेस्ट में ये क्वेश्चन दिया कितने बच्चे ये गलती करते हैं, इवन द गुड स्टूडेंट्स आल्सो। सो बेटा प्लीज पे अटेंशन हियर, दिस 3 इज लिंक्ड विद दिस, ये 3 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास मल्टीप्लिकेशन इज डन फर्स्ट, नॉट द एडिशन। तो अगर आप इस 4 + 3 को 7 करते हो तो पूरा क्रॉस 0 मार्क्स यू विल गेट। 4 अपनी जगह पे रहेगा, पहले ये ब्रैकेट ओपन करो, 4 + 3 × t 3t plus 3 2s are 6, 10 + 3t जो लाइक टर्म्स है बिना t वाले वो ऐड हो जाएंगे, देन 10 इधर जाके माइनस होगा, वैल्यू ऑफ t विल बी 2। वेरी इंपॉर्टेंट सम, बुक में आप मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। और बस ये ध्यान रखना है ऐसे 4 + 3 7 मत कर देना, ओके। So few questions are left. Most probably tomorrow we will finish the revision of this simple equation. ठीक है, 2-3 equations more I will take and then we will discuss the statement sums which are almost the same. 3-4 तो सेम ही है दोनों एक्सरसाइज में. So most probably tomorrow we will finish this chapter and on Monday we will take the another chapter. Okay? Any doubt to anyone? Yes, Harjeet. मैम डायरी में तो बसंत की कल हॉलीडे लिखी है. कल हॉलीडे लिखी है बसंत की? डायरी में मेंशन है? मैम कह रहे हैं कि कल बसंत की हॉलीडे होती है. डायरी में मेंशन है? मैम आई विल रीचेक. I don't think so कि it is mentioned in diary and if it will be holiday you will be intimated, but I don't think so. हमें तो नहीं कोई पता. ठीक है, डायरी में आप चेक कर लेना बेटा, मुझे पता नहीं है. ओके मैम. ठीक है, see you in the next class. Take care everyone.